हाँ बात क्या था वो ओके सर वो सो फॉर्मूला दोबारा एक बार लिख हाँ देना, वो हाँ हाँ पूरा नहीं मैं मैं लिखूँ। ओके ओके आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दिस so generally the probability is equal to the probability is favorable outcomes upon total number of outcomes आउटकम्स। ठीक है यस favorable सर। outcomes can be again classify in the name as a favorable arrangement. We have seen yesterday na favorable arrangement upon यस सर। total arrangement. So for example, can I take again an example to understand better this probability idea? Suppose I want to find out the probability of getting even number of 3 digit using the digits 1 2 3 4 5 6 and repetition is not allowed. Repetition is not allowed. So this is the question for us. The probability of getting an even number of 3 digit using the digit in 1 2 3 4 5 6 and the repetition of the digit is not allowed. So what is the favorable here? Favorable is getting a even number of 3 digit. Favorable is my getting a even number of 3 digit. And what the total is all the digits, or you can say all the numbers. So the favorable is nothing. It is 3 digit even number. I need to make it. So 3 digit even number, the 2 can become here, 4 can become here, and 6 can become here. So that this place there is 3 possibility to become. If I fix one digit here, so I have 6 digits total, so that has to be a 5 and this is 4. So this will be a 60 ways. So the favorable outcomes you can call and the even number is my 60. There are 60. And what the total number? यस सर। Total number will be 1, 2, 3. Anyone can come here apart from this one. This is 4. So this will be 120. Are you getting this? यस सर। यस सर। So the probability is favorable, that 60 divided by 120 is equal to 1 by 2. Okay. So यस सर। from this idea, we can understand कि sir, we have did this thing. Favorable means even number banana, odd number banana. We have seen in the PNC, and this thing यस सर। also we have seen in the PNC. So यस I सर। got in my mind that probability. Can I say it's a ratio of arrangements under given condition? यस सर। Can I say यस सर। यस सर। ratio of arrangement under given condition? Given condition means what? Favorable upon total. Okay. यस सर। Sometimes this total can be changed. Sometimes this total is also having some conditions. So please understand the ratio of arrangements in the given condition will be probability, nothing else. Okay. Do not worried about what we have the probability that we have understood in the 11th, 12th class. That's also okay. But the meaning of the probability is nothing. This is the ratio of the arrangements and under given condition. Whatever the condition, we will let you, we will think कंडीशन क्या होगा, कैसे होगा, हम उसके बारे में बात कर लेंगे एट द मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है. देखिए क्वेश्चन यस में सर। जैसी कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट्स निकालेंगे एंड वी विल टेक द रेशियो एंड वी विल गेट एन आंसर. ओके. यस सर। Now you need to understand the probability of any event. The probability of any event will be less than is equal to 1 and greater than equal to 0 always. यस सर। ठीक है.
This thing that you need to remember. The secondary thing is, suppose we have the probability of happening a event is P of E, and not happening a event, not happening event. The probability can be distributed in P of E bar. Are you getting this? P of E bar. So we have one more formula, Yes, sir. probability of happening a event and probability of not happening a event is equal to 1. हैपनिंग इवेंट और नॉट हैपनिंग इवेंट का जो वैल्यू होता है वो मेरा 1 होता है, तो यहाँ से मैं एक बात समझ सकता हूँ, probability of happening a event 1 minus probability of not happening a event, और probability of not happening a event is equal to 1 minus probability of happening a event. Are you getting this point? Yes, इस sir. फॉर्मूले से मैं कभी भी, सपोज मैंने बोला the probability of getting 2 in any situation. So what is the probability of this E bar is not getting 2? Okay, not getting 2. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. What the next idea that we need to understand? The next idea is what is event? Let me just come out here. Events. Events will be you can say 3 to 4 type of event. One is equal likely event. Next is independent event. Next is mutually exclusive event. Next is mutually exhaustive event. Got it? There are mostly Yes, the four type of understanding that we have to keep in our mind. वैसे तो और भी है, but this is the thing that important one and that you have to get is वो कह देगा null event, ठीक है, या zero event, so that will be not happening, है ना, या आपसे कह देगा Yes, sir. sure event and एक second. So we will look this one, equal likely event. Equal likely event means what? Suppose event A and B are equal likely event. Equal likely event. Then please understand, probability of happening a A is equal to probability of happening a B. Are you getting this? Yes, sir. Probability of happening a A is equal to probability of happening a B. For example, if I am tossing a coin, Sir, yes, yes, sir. Head tails की, sir, Yeah. head tails की बराबर होगी. yeah, had tails. If I am tossing a coin, then getting a head will be 1/2 and getting a tail will be 1/2. Okay. And suppose I am tossing a die, I'm throwing a dice also, 1 2 3 4 5 6. So getting a 1 is 1/6, getting 2 1/6, getting 3 1/6, getting 4 1/6, getting 5 1/6, and getting 6 1/6, है ना? They all are equally likely event. Got it? तो आप ध्यान रखेंगे, Yes, sir. अगर मेरे पास टोटल इवेंट्स को मैं सैंपल स्पेस भी कहता हूँ, 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस ऑल्सो. ठीक है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, यू कैन कॉल एज अ टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट. तो इन जो ये मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, दे एलिमेंट्स हैविंग ऑल आर इक्वल लाइकली, दे आर ऑल आर इक्वल लाइकली. क्लियर है? नाउ Yes, sir. व्हाट द इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट सर इवेंट जब इज, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को वो ना करे, हाँ, मतलब अफेक्ट चेंज ना ना करे. करे. यस 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 यस. सपोज आई हैव गिवन द क्वेश्चन टू यू, ठीक है, और यू कैन से वी हैव द क्वेश्चन इन द स्क्रीन. So you are solving that question also, and I am also solving those questions. So my performance is not going is not depending on your performance, na?
एंड योर Yes, sir. परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन माय परफॉर्मेंस। हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं ना कर पाऊँ, और हो सकता है कि मैं कर लूँ आप ना कर पाए, और हो सकता है हम दोनों ही कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों ना कर पाए। ठीक है। So Yes, if I sir. say the event A and event B are independent event, independent event, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, है ना। Then Yes, sir. Yes, sir. suppose I have taken the probability P of A and the probability of P of B. So probability of A intersection B is nothing the probability of A into probability of B, मतलब दोनों की या जो दोनों के हैपनिंग का जो इवेंट है दैट विल बी मल्टीप्लायर। ठीक है, दैट P of A into Yes, sir. P of B, got it? Yes, sir. Now mutually exclusive event, please understand dependent, independent and mutually exclusive are the different thing। ठीक है, म्यूचुअली कभी कभार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उनको, तो यहाँ समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है, सपोज मैंने बोला इवेंट ए एंड इवेंट बी आर लेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, it means please understand that A intersection B is equal to 0, that A intersection B is equal to 0। कहने का मतलब है जब इवेंट ए होगा एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम द इवेंट बी कांट बी हैपन। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, इफ इवेंट ए is happening at same time B can't happen। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक Yes, sir. एग्जाम्पल से समझते हैं। इवेंट ए इज आई अज्यूम दैट गेटिंग ए इवन नंबर, गेटिंग अ even number, getting a even number in throwing a dice, in throwing a dice। ठीक है, event B I have taken as a getting a odd number, getting a odd number while throwing a dice, and C I have taken as a getting a multiple of, getting a multiple of 3 while throwing a Yes, dice। sir. Got it? I know the total sample space is 1 2 3 4 5 6, and event A will be what? Event A is 2 4 6 only, and event B will be what? 1 3 5 only, but the event C will be what? Multiple of 3, then 3 and 6। So tell me, when A happen, can B happen? No यार, even number और No, odd sir. number दोनों एक साथ नहीं आ सकते। If I will see Yeah. that A and B, they are mutually exclusive, they are mutually exclusive। Exclusive. But if I say that A and C, see A and C, मैंने बोला the even number, so even number the 6 is also the multiple of 6। It means when the A is happening, the C can be happen, or you can say C can be occur। 6 है तो 6 आ गया, इसका मतलब क्या है? They are not mutually exclusive। Getting the point? Yes, sir. Similarly, can I say B and C? See B and C, 3 and 3 is also there, Sir, odd number getting a not multiple of mutual. 3, yeah, not Sir, mutually, not mutual. है ना, not mutually। What you need to understand at the mutually point, when the two you can call as a two events are mutually exclusive, then please follow one idea here. The probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, बट इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, व्हाट इट विल Zero. बी जीरो। सो प्लीज ये बात भी याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to 0 in this case, mutually exclusive case। So probability of A union B is nothing that probability of A plus probability of B। Got it? Yes, sir. This is important idea here that you need to keep in mind। Mutually exclusive exhaustive event, ये easy है। Suppose I said that A and B are mutually exhaustive,
ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ध्यान रखेंगे एक गिव मी मिनट। तो ध्यान रखेंगे, देखिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है व्हेन आई टेक द ए यूनियन बी then it will give me total sample space. कहने का मतलब है सपोज मैंने बोला दैट ए इज माय 1 2 3, या मैंने बोला 1 2 4 फॉर एग्जाम्पल, और बी मैंने बोला 3 5 6, while tossing a dice, while throwing a dice, ठीक है। मैंने जब देखा यार, मैंने जब ए यूनियन बी करा तो वो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आया कि नहीं? यस सर। टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इट मींस ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का फंडा होगा तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज इट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दिस इज द फंडा फॉर ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ आइडिया। तो आप मुझे बताओ, अभी आपको ये चारों क्लियर है? इक्वल लाइकली यस इवेंट, सर। इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। यस सर। Okay, now what we have in the probability, we have one more thing, odd in favor and odd against. Please understand this concept is odds in favor and odds against. Now odds in favor and odds against, ठीक है। Now please understand, suppose I have m number of element, that is favorable event, and n I have unfavorable event, ठीक है, unfavorable event। डेफिनेटली आप एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये पूरे के पूरे m प्लस n एलिमेंट है किसी भी सैंपल स्पेस में, तो डेफिनेटली कैन आई से m इज माय फेवरेबल, है ना, और देन n इज इक्वल टू अनफेवरेबल। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। है ना। सो ऑड्स इन फेवर, याद रखेंगे, ऑड्स इन फेवर, फेवर का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन number of unfavorable outcomes. Got it? Number of favorable outcomes upon number of unfavorable outcomes. So it means, can I say this is n upon m? यस सर। फेवरेबल आई हैव अज्यूम एज m ना, मान लो अगर आपने फेवरेबल को f माना है, अनफेवरेबल को u माना है, then this value will be f upon u. What is the problem? Nothing. Now यस सर। odds against, against का मतलब ही आप समझ लो अनफेवर, है ना। यस So सर। that number of unfavorable event, yeah, number of unfavorable outcomes upon number of favorable outcomes. Are you getting this? यस सर। ठीक है। So can I say this is n upon m? यस, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। Okay, now this can be classified in different way also. How it is? Now tell me, suppose I divide with this m, this m will be m plus n, and this n will be m plus n. Then what it becomes? It becomes probability of happening a event or not?
favorable outcomes upon total Yes, outcomes, sir. and this becomes probability of not happening a event because Yes, sir. unfavorable upon n plus n, है ना? तो Yes, odds sir. in favor is also the ratio of the two probabilities, the favorable probability and the unfavorable, means happening a event and not happening a event, and favor में बात करेंगे. And similarly, can I do this? हाँ सर, यहाँ पे भी कर सकते हैं. So this will be what the probability of not happening a event Not upon happening. probability of happening a event. ठीक है? इसका मतलब है we can understand in this way also please and this way also. Suppose हो सकता है आपको दे वो कह दे कि if the probability of happening a event is my 3/4, find the odds against. Find the odds against. तो भाई मुझे पता है ये फेवरेबल है, ये टोटल है, तो अनफेवरेबल मेरा 1 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यार ये 3 फेवरेबल है मेरे पास, 4 मेरे पास टोटल है, तो अनफेवरेबल 1 हुआ. तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है अनफेवरेबल अपन फेवरेबल, द आंसर इज 1/3. और अगर आपको ये आइडिया नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आप देखते रह जाओगे कि इससे हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करें, ऑड अगेंस्ट ये सर हम कहाँ स्टार्ट है. अनफेवरेबल सर अनफेवरेबल तो माइनस करके निकाल लेंगे ना. हाँ वो तो माइनस करके डिवाइड कर निकाल लेंगे. लेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो तो अनफेवरेबल आ जाएगा. 1/4 आएगा सर. 1/4 क्यों आ रहा है? नहीं, अनफेवरेबल तो पीई प्लस पीई बार 1 होता है ना, तो पीई हमें हाँ पता है. ऐसा भी कर लेंगे, दिस इज 3/4, दिस इज 1/4, है ना? सो क्या हो जाएगा, 1/4 तो डिवाइडेड बाई रेशियो ले 3/4, लेंगे. अगेन आई विल टेक दिस इज 1/3. ऐसा कर सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत सर. नहीं है. हाँ सर, मैं यही कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हूँ. ओके सर. यस सर. नाउ सो अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर है जो आपको समझना है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप इन आवर परसेप्शन के प्रोबेबिलिटी में ना कोई भी आंसर मेरा 0 और 1 के बीच में रहता है. ठीक है, ऐसा हम परसेप्शन बना लेते हैं. बट दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये मेरे पास में 1 से बड़ा हो सकता है. इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 67, कैन बी एनीथिंग. ठीक है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज के अगर हमारी इसकी वैल्यू हाँ बढ़े सर. है ना, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज. ओके सर. ओके, ठीक है, समझ गए. क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके next is the two ideas that is most important one. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरफुली. ठीक है, देन आई विल टेल यू द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट. पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई हैव यस सर. टू bags. I have two bag. One is having 3 red ball, another is having 5 of black ball. One is having 5 of red ball and other is having 4 of black ball. मैंने बोला I want to take, sorry. मैंने बोला find the probability of getting a red ball. ठीक है, मतलब मुझे एक बॉल चाहिए और वो बॉल मेरी कैसी होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए. ठीक है, आर यू गेटिंग यस दिस? सर. यस सर. सो यस सर. हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? लॉजिकली अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट की भी बात नहीं करूं तो आप मुझे बोलोगे सर रेड बॉल, 1 रेड बॉल कैन बी फ्रॉम बैग 1, है ना, बैग 1, और 1 रेड बॉल कैन बी फ्रॉम बैग 2. यही होगा.
Yes, sir. है ना? Yes, So sir. Yes, sir. getting a red ball from bag 1, what the total arrangement? टोटल मेरे पास बॉल है 7, तो मुझे 7 में से एक बॉल चूज करनी है, 7C1। लेकिन Yes, sir. बैग 1 में रेड बॉल कितनी है? 3 है, तो 3 में से मुझे एक बॉल चूज करनी है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/7 getting a red ball from the bag 1. Similarly, in bag 2, I have total as a 9 balls, so that's 9C1, and red चाहिए, this is 5C1, that answer would be 5/9. तो आपने कहा कि सर या तो ये है और का मतलब प्लस होता है, so that will be Yes, sir. 1/7 plus 5/9. So this is the probability of getting red ball. If I will solve this further, this is 63. If I will multiply, this will be 27 plus this will be 35. 62. So this will be 60. 12, that's 62/63. ठीक है? Yes. I made this question instantly. ठीक है, मैंने अभी ये क्वेश्चन मैंने randomly लिख दिया, so I got the probability as a this. ठीक है? What happened when this is what happened when this is said कि मैंने अगर यहाँ क्वेश्चन बोला, I said this question, I have the 2 bag again, and the same question I'm taking as 3 red here and 5 black. I think 5 red here and 4 black. Four मैंने black. बोला Yes, sir. find the probability of getting a red ball from bag 1. ठीक है? और मान लो मैंने बोल दिया और बैग 2, और बैग 2 छोड़ो, मैंने बोल दिया बैग 1, मतलब मैंने अब स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई आई वांट यू कैन से रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1 ओनली. ठीक है? क्लियर सर है? ये अरे तो बेस थ्योरम, यस सर, ये बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन हाँ लग रहा हाँ, है. I'm just coming that point only, please understand. मैंने यस आपको सर. बोला था मैं उसका नाम अलग बाद में दूंगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जब पहले से बेस थ्योरम डाल दो ना, तो उसके दिमाग में आते हैं और ऐसी कोई थ्योरम सी हमें पढ़नी है, उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ नहीं बड़ा नहीं सर, सिंप्लीफाई वे में. ये 11th में, ये हाँ 12th में 11th पढ़ी में हुई है है, ना मैंने. 11th में है. तो ये हम बड़ा सिंप्लीफाई वे में कैसे कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले हमारे पास में कोई भी हमें एक बैग चूज करना है, इन दोनों में से बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. 1/2. 1/2. यस यहां सर. से मुझे अगर रेड बॉल चूज करनी है तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/7, and here the red ball probability is what, my 5/9. So the probability of getting a red ball from bag 1 will be, bag 1 की getting a probability कितना है, half into 3/7 यस सर. डिवाइडेड बाय में टोटल प्रोबेबिलिटी आती है. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/7. Are you getting this? So if you हाँ will सर, समझ say गया. this is cancelled, so this will be 3/7 upon, earlier the answer would be 62/63, so this is cancel again 9, so the answer would be 27/62. So Yes, sir. this can I talk, this is base theorem question, and the earlier question is my total probability question. Total probability question. ठीक है? This is the सर question of total ये सही probability. है, Got it? ये वाला सही है. यस सर, ये वाला मेथड ज्यादा सही है. हाँ, तो what we are doing, we are not learning any new theorem, new pattern. What we are doing, as I told you ना, you need to understand the statement given to us. उसने बोला एक मुझे रेड बॉल चाहिए
और एक अगर रेड बॉल चाहिए तो बताओ भाई क्या हो सकता है। एक जब मुझे रेड बॉल चाहिए तो आप मुझे बताओ रेड बॉल या तो यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ से आ सकती है। सो वी हैव मेक द टू केसेस एंड वी हैव जस्ट ऐड देम एंड वी हैव गेट द आंसर। ठीक है। सर इसी में अगर 3 बैग होता तो हम फिर 1/3 हो जाएंगे, तीनों हाँ बैग हाँ हाँ, 3 का। 1/3 हो जाता। ठीक है। यस सर, समझ गया। गॉट इट। So यस this सर। is all about your probability that I have discussed the Bayes theorem also. ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यस आने सर। के चांसेस ज्यादातर यहाँ से रहते हैं। ठीक है, बैग्स वगैरह के, सर कॉइन्स बॉल वाली, वगैरह के, हाँ सर, बॉल ये वाले वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन के आते हैं साथ। क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और, आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज है? यस सर टोटल सर, कार्ड्स कितने पता है होते हैं? उसका सर। सर 52, 52। जिनमें से 4 टाइप के कार्ड्स निकलेंगे। कौन कौन सा? उसका सर स्पेड, या आप ये स्पेड कह सकते हैं, डायमंड हार्ट एक क्लब। सेकेंड, या फिर ये कह सकते हैं कि 26 मेरे पास में रेड होते हैं और 26 मेरे पास ब्लैक होते हैं। 26 ठीक है। ब्लैक। ये एक, गिव यस मी अ सर। मिनट, लेट मी रिवाइज इट। आई हैव 26 एज अ ब्लैक कार्ड एंड 26 एज अ रेड कार्ड। रेड में रेड अगर मैं कार्ड। बात करूंगा तो हार्ट एंड डायमंड ना, यस सर, उसमें स्पेड और वो है ना। और क्लब। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा स्पेड एंड क्लब, each having 13, यस। each having 13। 13, each having 13, and each having 13. This 13 can be distributed again, that A, Q, J, and King. They are called as a, यस सर। they are called as a, फेस कार्ड। नहीं, फेस सर कार्ड ए नहीं। तो एस हो गया। ए, सर ए तो एस होता है। हाँ, फेस कार्ड नहीं, they are called as a honor card. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक They are called as a honor card. And apart है। from ऑनर these कार्ड। three, we have left with 9. They are called as a normal card. And out of this 4, there are Q, J, K are called as a face card. यस सर। ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड 4 है। एक टाइप के, तो इसमें ही 4 होगा, इसमें ही 4 होगा, इसमें ही 4 होगा, तो 4 इंटू 16, सॉरी 4 इंटू 4 दैट इज 16। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 3 है, तो चारों में 3 3 होंगे, तो कितना हो 12। जाएगा मेरे पास में? सर 3 12 इंटू 4 12। दैट इज 12। Total number यस of सर। normal card, total number of normal card, that will be 9 into 4, that will be 36, 36। है ना। किंग यस सर। कितना होंगे? किंग होंगे 4, क्वीन होगी 4, मेरे 4 है। ग्रैब मेरा यस सर। 4, है ना, और एस मेरा 4, एवरीथिंग, है ना। यस सर। एंड यस इन सर। 4 में भी 2 मेरे पास में ब्लैक हो जाएंगे, 2 रेड हो जाएंगे, है ना। चलिए, यस सर। similarly, suppose I draw, I throw a 1 dice, I get an idea, 6 total arrangement, throwing a 2 dice, getting 6 raised to power 2 arrangement, 36। throwing a 3 dice, यस that सर। will be 3 raised to power 6 raised to power 3. 126। And यस सर। similarly, suppose I am tossing a 1 coin, that will be 2 arrangement, 2 coins, that 2 raised to power 2, 3 coins, that will be 2 raised to power 3, suppose 4 coins, that will be 2 raised to power 4. And in this way, we are getting the idea. And यस everything we सर। are getting in this way only. Okay, so this is all about your probability. Now we can do with the questions, then how we can solve it. Okay. यस सर। Okay, let's try the question. We have the sheet. Give me a minute. What is the probability that the card drawn at random from the pack of 52 card is either a king or a spade? किंग तो सर 4/52 प्लस पेड हमारे होते हैं 13/52। ऐड हो जाएंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी। 4 by 52 plus प्लस 13 13 बाय by 50। 52. So that will be hot में 17 by 52. Yes, correct. एकदम यस सर। correct. Next. Sir, a card is drawn from a well shuffled pack of cards. The probability of getting a queen of club or a king of heart. सर क्वीन होगी, क्लब होते हैं 13, क्वीन होती है एक उसमें। एक से
getting a queen of clubs, there is only one possibility out of 52, 1 by 52. Yes, sir. or there is Or one king of heart, that is king again of 1 by heart. 52. The answer is my 2 by 52. The answer is my 1 by 26. 1 by 26. Yes. Okay. Yes, sir. Next. Sir, 26 by 52, that is 1 by 2 plus king भी अपना उसमें, और king को भी 4 होता है, 4 by 52. One card is drawn from a well shuffled card 52. The probability that either it is a red card or a king. So 1 by 2 plus 1 by 13. सर नॉट लग रहा है हमको. 15 by 26 आ रहा है. हाँ जी बताइए. सर 15 by 26 आ रहा है. 15 by 26 आ रहा है. गलत करा आपने. आपने क्या करा यहाँ पे? आपने करा Sir, whether it is a जो red red- card, that is 26 by 52. और आपने क्या करा? चाहे 1 किंग ऐसा तो किंग तो किंग है 4 हो तो गया ना. 1 by 4 by 52. यही बोला ना आपने? यस सर. 30 by 32 वो And 30 this by will be 52 हो गया. 52. So आप बोल रहे हो 15 by 26 है ना? ये गलत है क्योंकि आपने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी. देखिए पहले वाले तो केस king में क्या तो हो रहा red- था, गिव मी अ मिनट, लेट मी टेल यू. पहले वाले जो केस में अगर हम ऐड भी कर रहे थे तो ये हो रहा था कि भाई जब क्वीन आएगा तो किंग नहीं आ सकता. ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था अल्टीमेटली. ठीक है. Yes, और sir. यहाँ भी जब हम बात कर रहे थे तो जब मेरे पास में किंग ऑफ स्पेड या स्पेड आएगा या आइदर अ किंग आएगा तो हमारे पास में, ठीक है, नहीं बन रहा था. तो मेरे पास में क्या कहानी बन रही है यहाँ पे अब, आइदर अ रेड कार्ड और किंग. इसका मतलब है एक कार्ड ऐसा भी होगा ना जो रेड भी होगा और किंग भी होगा. बताओ. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. probability being red or king will be probability of red plus probability of king minus a probability of red intersection king. So probability of red will be 1 by 2 plus probability of king will be 1 by 13 1 by 13 minus 1. a probability of red and king will be 1 by 52. If I take the LCM as a 52, that will be 26 plus 4 minus of 1, that will be 29 by 52. I'm getting this. Give me a minute. Let me. Either it is a red card or a king. So red card will be 26 by 52. Yes. Plus the king will be 4 by 52 minus 1 is red card is a king, that will be 1 by 52. Yes, so I'm getting 29 by 52. Answer is none of these. Check करना पड़ेगा इसका आंसर. ठीक है सर एक चीज हाँ, पूछनी बोलो. थी. जो सर आपने जब फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिखाया था स्पेड और किंग वाला, एक बार वो वाला दोबारा दिखा दो क्वेश्चन. तो सर उसमें नहीं होगी, स्पेड में भी तो एक किंग होगा. आइदर अ किंग और अ स्पेड. स्पेड का भी तो एक ब्लैक किंग आता ही है, तो उसमें से आ सकता है वो. ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन. आप एकदम सही कह रहे हो. तो मान लो मैंने अगर ये लिखा 4 by 52, हमने ध्यान नहीं दिया इस पे, यस सर. प्लस इसमें थोड़ा 26 बाय स्पेड मेरे पास 13 होते हैं ना, तो यस सर. 13 by 52 52 minus of there is one card of the spade is king, that 1 by 32. The answer will be सर 17. उसमें भी ऐसे ही That's 16 by 52. 52. That is 4 by 30. Yes. 4 by. This सर answer ये is 4 correct. by 30. 4 by 13 is वो correct. देखना. ठीक है. यस सर. वही मैं देख रहा था, अभी आपने बताया ना, मैंने तो उसमें हाँ भी हाँ यही था. हाँ, नहीं नहीं, ये भी यही होगा. अच्छा गिव मी अ मिनट, एक बार ना मैं इसका एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ और आपको आंसर की भेज देता हूँ ना आज. एक बार मैं देखता हूँ. सर वो पीएनसी की भी भेज देना. हाँ, दोनों की भेज दूंगा. आपको क्लियर हो गया ना ये? दिस इज करेक्ट डेफिनेटली यार. लॉजिकली एक स्पेड में किंग होगा ही होगा, मतलब ही नहीं बनता. हमने इस चीज को पहले कंसंट्रेट नहीं देखा नहीं है ना. और तो Yes, sir. सेकंड वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जब क्वीन होगी तो किंग आने का मतलब ही नहीं बनता.
है ना, वो म्यूचुअली यस सर, एक्सक्लूसिव हो समझ गया। गया। और इसका भी आंसर मेरा यही हो गया। चलो बाद में देखेंगे, हमारा आंसर नॉट। सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Sir, a card is chosen at random from a standard deck of 52 playing cards. Without replacing it, second card is chosen. What is the probability that the first card chosen is queen and the second card chosen is jack? तो सर क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 होती है विदाउट रिप्लेसिंग इट, मतलब 51। सर तो 4/52 इंटू 4/51। यस, without replacing 4 by 52 into 4 by 51. Yes, एकदम correct. This is 13. So answer is 4 by 13 1 जा 13, carry 1 and 65 66. So answer would be 4 by 366. ठीक है, यस सर। एकदम करेक्ट। यस सर। रिप्लेसमेंट से होता तो क्या हो जाता, 4 by 52 एंड अगेन 4 by 52। यस सर, वो कार्ड वापस ही आ जाता है हाँ, उसमें से। if three unbiased coin are tossed simultaneously, then the probability that exactly two had। सर 8 आउटकम्स टोटल हो गए एग्जैक्टली। सर हम इसको पीएनसी के मेथड से कर सकते हैं। एकदम एकदम यही कहने वाला था भाई, टू हेड हैं तो एक टेल होगा। यस सर। What is the probability? What is the PNC is a three arrangement with the two into equal to 3 only? यस सर। So answer would be 3 by 8। हाँ सर, मैं यही कर रहा था, पीएनसी बस के मेथड से ही सिमिलरली कर रहा था। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर। When इसमें two तो dice आउटकम्स बना के देखने पड़ेंगे। when two 11 dice are की जो rolled, what is the probability that sum of number appeared on them is 11? Yeah, क्या प्रॉब्लम है, अभी बताता हूँ। देखो 11 कैसे बनाएंगे। मुझे 11 बनाना है, तो 6 11 मेरा देखो किसके साथ बनेगा, सबसे पहले बड़े नंबर के साथ बनाओ। 6 5 5 6 5 और किसी के साथ बन रहा है, दो ही। दो ही है नो ना, तो सर, 2 by 36 आंसर इज 1 by 18। इजी वन था बाई कि नहीं, 18। इजी यस था। सर, इसमें नहीं हम यूज कर सकते ये ट्रिक्स तो थी ना ये अभी पीछे पीएनसी की। हाँ जी, इसमें सर हम पीएनसी की ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते ना, हमें डाइस के क्वेश्चन में तो हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। हाँ डाइस की केसेस में आपको केसेस बनाने पड़ देंगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हो ना, डाइस के केसेस में पीएनसी यूज हो जाएगा। 11 किससे बनेगा, 6 and 5 से बनेगा। तो देयर आर टू यस सर। नंबर, यस सर। अरेंजमेंट इज 2 फैक्टोरियल। मान लो अगर मेरे पास 3 डाइस होती, 3 डाइस में वो कह देता कि मेरा 2 2 3 आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अरेंजमेंट, या मान लो मेरा 1 1 4 आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी बट 3, 2 फैक्टोरियल। है ना। और यस यहाँ सर। पे यस क्या हो सर। जाएगा, 3 यस सर। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज यू कैन से बाय 2 3। अब मान लो 2 3 5 आ रहा है, तो इसके टोटल कितने बनेंगे, इतने, जो 3 टोटल फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन, है ना। यस सर, 3 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ कर सकते हैं बीएनसी का यूज। यस सर। यस सर। So a committee of 3 members is to be selected out of 3 men and 2 women. What is the probability as 1 woman? तो सर इस ये वाला तो हो सकता है A एटलीस्ट committee of 1 3 women है member ना। to be selected out of 3 men and 2 women. What is the probability that committee has at least 1 woman? अब at least 1 woman का मतलब आप समझ लो ना, no woman। यस सर। भाई आप चाहो तो देखो, सर हम वही इसको है ना। इसको इसको दो तरीके से कर सकते थे। भाई 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 3 मैन और 2 वुमेन में से, तो कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, तो मेरे पास 2 मैन हो जाएंगे। 2 वुमेन होनी चाहिए तो मेरे पास 1 मैन हो जाएगा, और तो कुछ केस बनेगा नहीं, और ये थर्ड वाला केस होगा यस नहीं। और सर। क्या होगा, 0 वुमेन प्लस 3 के 3 मैन, यही तो टोटल अरेंजमेंट हुआ ना। तो टोटल में से हम ये वाला घटा यस देंगे सर। तो हमें वो मिल जाएगा, है ना। व्हाट इज द कमिटी एटलीस्ट 1 वुमेन, तो टोटल अरेंजमेंट होगा सर 5C3 डायरेक्टली। देखो 5C3 ना, 5 लोग हैं, 3 हाँ की 5 टीम लोग बनानी है, तो 3। 5C3। अब फेवरेबल, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो इन दोनों का साइड, जैसे आप लिख लो 2C1 इंटू 3C2, दूसरा लिख लो तो आप 2C2 इंटू 3C1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3, दैट विल बी 9। आंसर इज 9। 5C3 का देखेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10, है ना। सर इसमें हम अगर अच्छा अच्छा ठीक सर, अगर हम इसमें 1 - 3C3 कर रहे तो 0 आ रहा है, मतलब तीनों ही अगर हम मैन ले लिए और फिर 1 से माइनस कर देंगे तो 1 से उसमें क्यों विमेन माइनस आई जाएंगे करोगे, साथ। 1 से क्यों माइनस करोगे, 1 से नहीं कर सकते ना।
सर नॉट हैपनिंग वाला फॉर्मूला लगा लेना। नॉट हैपनिंग वाला केस probability आप कैसे लगाओगे? जो आप 1 से माइनस करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना नॉट हैपनिंग वाली तो। और तो सर नॉट नॉट हैपनिंग की नॉट हैपनिंग की जो थ्री सी। प्रोबेबिलिटी है 3C3 एंड 5C3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ तो सर यही मैं कहता हूँ, इसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें हाँ, विमेन सीधा ही मिल जाएगी। 1/1/5C3। 5C3 का मतलब है 5 into 4 divided by 2, यस that सर। is 10, है ना? यस सर 10 1 by माइनस 10, 1 तो 9। 1 minus 1 by 10 will be 9 by 10, so answer is this 9 by 10। यस सर मैं इससे कर रहा था। और अगर आप ऐसे नहीं कर, आप क्या कर रहे थे? आप 1 minus 3C3 कर रहे थे। हाँ हाँ वो पहले गलत बोल दिया आपने मैंने, गलत करा प्रोबेबिलिटी ना, क्योंकि माइनस 2। ये प्रोबेबिलिटी यस आपको सर। माइनस करनी चाहिए थी। यस सर वो मैं गलत बोल कर गया था थोड़ा सा। ठीक है। यस सर। सर 1 2 1 2 3 से 50 तक है प्राइम नंबर। A number is selected at random from the set of this, the probability that it's a prime number, it's a prime number। So भाई यहाँ से लेके प्राइम नंबर 40। देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। 5 7 11 11 के बाद 13 13 के बाद 19 19 के बाद मेरा 23 23 के बाद 21 31 37 47 आया था सर। 37 के बाद आप मेरा 41 41 के बाद मेरा 47। सो दीज आर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दिस 13 बाय, और कोई नंबर रह गया 13 क्या? बाय टोटल। और कोई नंबर रह नहीं गया तो क्या? सारे हो। सर 2 3 1 तो 5 प्राइम नहीं होता ना। नहीं, 1 प्राइम नहीं होता है। 11 13 17 आई लेफ्ट, तो टोटल हो गए मेरे 14। सो दिस 14 by 50 इज इक्वल टू 0.7। यस सर। ठीक है। अब देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ आपको, और मैं अभी चल रहा हूँ आपके इस वाले पार्ट पे, इस टाइप के बॉल वाले पार्ट पे। ठीक है। यस। A bag has contained 4 green and 5 blue, 2 red, 3 yellow marbles. If 2 marbles are drawn at random, what is the probability that both are red or at least one is red? एक मिनट सर ये लिख लूंगा। 3 येलो है। इफ 2 marbles are drawn at random, what is the probability that both are red or one at least one is red? तो सर both are red में तो पहले हो जाएगा 2C2 अपॉन कितना मार्बल्स है टोटल 9 11 14C2 प्लस। Yes, एकदम करेक्ट, प्लस और सर वो उसमें दूसरा क्या था? 1 is एटलीस्ट वन red. इज रेड। So this 2C1 into अदर कितनी है सब मेरे पास बाकी में? वो। 12C1 divided by 14C2। This is my answer। हाँ वो। यस सर यस सर। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या रहा। 2C2 will be 1 upon 14 into 2, 14 into 13 divided by 2 plus 1 and 2 into 12C1, 12C1 will be 12 divided by that 14 into 13 by 2, so this will be 7, this will be 7, so answer is 1 plus 24 divided by 7 into 13, so this is 25 by 91 91। नॉट है शायद। We have to check this। Yes, sir. 16 ना, give me a minute।